to call Dr. Shahid Iqbal Chaudhary, who has been an inspiration all throughout. I would want him to be here and tell us about his expectations of this exam and being a civil servant, how they are different and how can you be a true civil servant to this society. Dr. Shahid Iqbal Chaudhary. ये कह रहा था कि आपके अगर मन में कुछ सवालात हैं, बिकॉज एक जो लेक्चर होता है दैट इज आई मीन वन वे कम्युनिकेशन, उसमें ये पता नहीं चलता ऑडियंस कौन है, मतलब किस लेवल पे आप हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम में बैठ चुके हैं, सो योर रिक्वायरमेंट्स विल बी डिफरेंट. 2-3 बातें मैं आपसे करूंगा, देन आई विल लीव द हाउस ओपन फॉर एनी डिस्कशन. अगर आपसे 8-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, we can start a discussion with our young colleagues who have just qualified the UPSC Civil Services Examination. सुबह जैसे कि बता रहे थे कि UPSC हर साल सरप्राइज करता है, तो जरूरी नहीं जो चीजें 10 साल 15 साल पहले हों वही हों, बट कुछ पैटर्न सेम रहता है. तो मैं हमेशा पहला सवाल यही पूछता हूं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं. आर देयर एनी आंसर्स? एनीबॉडी? यस, कोई वॉलंटियर क्विकली. आपको क्लैरिटी तो होगी ना क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में. जी प्लीज. Good morning, sir. My name is Adib Hashmi. I am studying in Gandhi Memorial College, Srinagar. This is my last year of our graduation. So my aim is to become an IPS officer. The reason is because the injustice have happened with me. That is the reason. So I don't want to share right now, but later on, once. Basically, sir, I want to know. I have a fear. Like if any officer will work IAS, IPS, ARS or IFS, he will work with honesty. But the politicians are not letting him to do the work very honestly. If he is working honestly, sir, either they are getting transferred or the suspension. As I have some proofs as well, I have uploaded by my own on my social media account. Sir, I'm audible. What did you? Yes, sir. Can you please share your experience with us? I will share. I will be thankful to you. Anyone else? Yes, sir. नहीं, और भी तो होगा. Sir, they are saying same question. नहीं, मैंने कहा और भी तो कोई Yeah. मोटिवेशन होगी ना. Yes. Yes, please. Quickly 2-3 questions, then I will just take it and hand it over to our young colleagues. गुड आफ्टरनून सर. सर बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो कि न्यू एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको कोई एक्सपोजर नहीं होता इसके लिए सिविल सर्विस के लिए, क्योंकि स्टेट से बिलोंग करते कि जहाँ पे ज़्यादातर मटेरियल नहीं रहता था, तो उसके लिए क्या होगा. जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 2023 का, उसमें जो यूपीएससी की भी एग्जामिनेशन बॉडी थी उन्होंने थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया था. तो उसके लिए जो क्योंकि जो प्रीवियस एस्पायरेंट्स हैं शायद 21 या 22 के हों, तो उनको एक्सपोजर होता है कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द पेपर. बट जो कि रिसेंटली 2023 का ये था, आपने खुद भी एनालाइज किया होगा कि पेपर पैटर्न कंप्लीट चेंज होगा. उसके ऊपर कैसे प्रैक्टिस करें जो कि व्हिच सब्जेक्ट्स वी शुड चूज. और कोई सवाल? Quickly, yes please. Yes. So my question is not rhetorical. Mic, please. More so because I. एक सेकंड. ये सवाल इनका चल रहा है, माइक इन्हीं को दे दीजिए. She is already got it, please. Very good afternoon, sir. My question is not very rhetorical. I am actually very curious to know, because you're a civil servant and you've had quite some time being in the services. So there's an argument of late that there's a lot of scope for anyone to serve the society in many other ways, academia, for example, or public policy consultation. And there's another argument that with times there's a lot of lateral entry, and again, the scope of the state becomes lesser and lesser as you get up from a third world country to a second world country and then to a first world country. Given the glorification that we give to UPSC or JKS as a whole, do you think the scope of being a civil servant is gradually reducing, and thus we should go for alternative career paths? Because I'm a very young aspirant. आपका नाम क्या है? Madhira. तो मदिया जी का ये सवाल इसलिए कि हम पहली बार मिल रहे हैं आज, अदरवाइज इसका आंसर मैं दे चुका हूँ. आई विल कम टू दिस. डिफरेंस सिर्फ इसमें है कि आपकी क्लैरिटी फॉर योर प्रिपरेशन, सिलेक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ योर स्टडी मटेरियल और एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है. कोई भी आदमी डिफरेंट नहीं है. और आई रिपीटेडली से दिस फ्रॉम स्टेज ऑलवेज
कि हमसे 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर लोग हैं जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ लोग प्रीलिम में बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत डीप चले गए उस जोलॉजी के सब्जेक्ट में जो रिसर्च के टाइप का था, जो चाहिए नहीं था। सिर्फ ये है कि राइट चीज़ें पिकअप करना है बास्केट से, ठीक है ना, एक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इन्होंने कहा कि पिछले सेशन में भी कि 1 साल तक आपका एग्जाम चलता है, तो 1 साल तक वो एग्जाम क्यों चलता है, वो एक दिन में भी आपसे पूछा जा सकता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपकी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों है, ये CSAT क्यों है, ये इतना टफ क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ये है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर आप देखें कि स्पेशलिस्ट या जर्नलिस्ट की डिस्कशन रहती है, जैसे कोविड की हम अभी बात कर रहे थे, तो कोविड में एज ए सिविल सर्वेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आप राइट काइंड ऑफ डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे, जनाब ये डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे कि कोविड का ये वायरस है, ये होता क्या है, चलता कैसे है, ठीक है ना। दैट इज सेलेक्ट करना, कोऑर्डिनेशन करना, एक केओस में से कुछ सिस्टम्स को पिकअप करना जो ऑर्डर इस्टेब्लिश करे। तो पॉइंट ये है कि आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसमें हर एक चीज को अगर आप थोड़ा सा एक वो कोल्ड ड्रिंक पी के बैठ के सोचेंगे कि भाई ये ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो सर्विस ये चीज डिमांड करती है। से अगर आप से हम कहते हैं कि आप ऐसे लिख के हमें बताओ, जब ऐसे आपको लिखने के लिए हम बता रहे हैं तो आपकी हम थॉट प्रोसेस देख रहे हैं कि भाई क्या ये आदमी फिट इन हो रहा है सिविल सर्विसेज में जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है रूल रेगुलेशन के सिस्टम में, या मतलब कहीं भी रैंडमली साथ चले जाते हैं। फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको हर एक स्टेज पे चेक किया जाता है। तो हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि जब एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, दैट हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वालिफाई करेंगे रिटर्न, उसके बाद आप पर्सनालिटी टेस्ट का करेंगे, बिकॉज पर्सनालिटी जो है वो ओवरनाइट तो डेवलप नहीं होती है। आपका किसी चीज़ पे ओपिनियन है, जो सपोज अगर फार्म लॉज की बात करो, किसी कंट्रोवर्सी की, किसी इशू की बात करो, आपका व्यू पॉइंट अगर उस पर पूछा जाता है तो वो ओवरनाइट नहीं होगा, उसको फेक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये साथी बताएंगे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो डिस्कशन है वो भी डेली होता है। मेंस की प्रिपरेशन हम मे बी चेंज ना हुआ हो तो हम लोग पहले मेंस की प्रिपरेशन करते हैं पूरी तैयारी करके, उसके बाद प्रीलिम की तैयारी शुरू होती है। फिर 2-3 क्वेश्चंस में क्विकली लूंगा। स्टडी मटेरियल का आपने कहा कि गांव में नहीं है। आजकल मुझे लगता है कि 20 इयर्स डाउन द लाइन जो सिचुएशन की वो नहीं है। आज आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, सिर्फ पॉइंट ये है कि राइट काइंड ऑफ मटेरियल सेलेक्ट करना, कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। तो वो हमेशा हम आपसे डिस्कस करते हैं कि 2 से ऊपर आप सोर्सेज ना लें, एक राइट गाइड आपके पास होना चाहिए। आप चाहे पिकअप करें, जो लोग सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आए हैं, हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइड आपको वो हो सकता है जिसने क्लासरूम में पढ़ाया हो, जिसको यूपीएससी के एग्जाम का पता हो, जिसने 3-4 साल पेपर स्टडी किए हो। तो दोनों सेट ऑफ पीपल आपके पास आ सकते हैं, या तो जिसने एग्जाम दिया हो, वो सक्सेसफुल हुआ हो या नहीं, उसको एग्जाम का पता रहता है। दूसरा, या फिर उस एग्जाम के लिए कोई पढ़ाता हो। फिर उसके बाद कोर स्टडी सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो पिक अप ए वेरी गुड टीचर इन दैट, जिसको आप टेस्ट वगैरह दे सकें पूरे साल, थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड रखे। वो गाइडेंस बड़ी जरूरी है। तो मैं हमेशा जब इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो ये इसी चीज़ से शुरुआत करता हूँ कि सिविल सर्विसेज की जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है, आई थिंक उसकी वजह से भी हमारे जो करियर ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं उसको हम अंडरस्टैंड करने में निगोशिएट नहीं कर पाते। निगोशिएटिंग आई मीन टू से कि जो आपके पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या उस ट्रांजिशन को हम निगोशिएट कर पा रहे हैं कि आज क्या है। मैं सुबह डिस्कस कर रहा था कि जम्मू में जब हम लोग थे तो किसी ने पूछा कि जब सिविल सर्विसेज आप लोगों ने ज्वाइन किया था तब में और अब में डिफरेंस क्या है। तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन कंप्लीटली चेंज है टेक्नोलॉजी के आने से, न्यू लॉज, सारी चीज़ें आप देख लें। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आप सिर्फ उसका बेसिक देखें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कितनी मेहनत करके आपको हर एक रिकॉर्ड, हर एक डिटेल पब्लिक में स्क्रूटनी में रखना है। उसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं उनमें कितनी चेंजेस हैं। आजकल सारी चीज़ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ईमेल, ई-ऑफिस पे चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पब्लिक का आउटरीच आप देखें जो 10 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। सो 10 years डाउन द लाइन सिविल सर्विसेज का ये शेप नहीं रहेगा जो आज की डेट में है। अगर उसके साथ हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, अपने आप की कैपेसिटी हम बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो अगेन विल बी लूजिंग दैट शिप। आज 11th क्लास का बच्चा यहाँ बैठा है, 10th का बच्चा बैठा है, इट मीन्स कि वो इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है, कोई भी सर्विस या कोई पोजीशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है काम करने के लिए, लेकिन अगर आप उसके लिए वेल इक्विप्ड, स्किल्ड या मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। चाहे आप IAS करके आगे हों, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। एक बार अंदर झांक के आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और आप चाहते क्या हो। परसेंटेज पार्टिसिपेशन का इन्होंने पूछा कि भी वो पास तो 1% ही होते हैं। तो अगेन इस पे ये बात रहती है कि ये अपने माइंड में मत रखिए कि 12 लाख 10 लाख लोग अपीयर होते हैं तो 100-200 उसमें से IAS आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका टारगेट इंडिविजुअल होना चाहिए। आपको क्या पता कि उस 12 लाख ने किस
माइंड में एग्जाम दिया, वो सिर्फ अटेम्प्ट करना चाहते थे या प्रिपेयर्ड थे, प्लान बी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि शुरू से होना चाहिए, राइट फ्रॉम योर डे वन। पावर का आपने बताया, तो पावर अगेन आई मीन अगेन इट्स एन अब्सर्ड कंसेप्ट कि भी हम पावर के लिए या ग्लोरी के लिए किसी सर्विस में अगर आप ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप में वो कैपेबिलिटी है काम करने की तो वो किसी भी पोजीशन पे आप कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज सिर्फ आपको वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वहाँ करने के लिए। अगर नहीं है, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, तो सोसाइटी में आप इमेंस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पावर आपकी इसी में है कि आप कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकें। अगर आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, सिस्टम में एफिशिएंसी ला रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि आपकी पावर है। तो दैट पावर टू क्रिएट अ डिफरेंस, जब आप ओपन माइंड से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, अपना स्टडी शेड्यूल साथ रखेंगे, तो आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो आई विल जस्ट कंक्लूड है। अगर कोई फर्दर सवाल स्पेसिफिक होगा मैं लूँगा, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गर्मी भी काफ़ी आपको लग रही है, तो हमारे जो साथी हैं ये आपके नए सवाल लेंगे आपके एग्जामिनेशन को लेके लेटेस्ट, और जो इनको सवाल मेरी तरफ से हैंड ओवर है तो वो मैंने सर्कल किए हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।